Hi guys, this is Pariti Tripathi on Cine Speaks. You know me, and we have today the very handsome and the very gorgeous, when disguised, Pammi Auntie, also known as Sumer. I'm sorry, also known as Pammi Auntie, with us. We welcome you, Sumer. Hi, thank you so much. Yeah, first of all, I will not ask you कि आप पम्मी आंटी कैसे बने. I think I think everybody knows that. Google कर लीजिए जिनको नहीं मालूम है. But ये कंसेप्ट आने के बाद इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये थॉट का जो पूरा जर्नी है वो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो. जब मैंने पम्मी आंटी शुरू किया था, मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. क्योंकि आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर माय ओन फन सेक. आई वाज जस्ट चिलिंग एट होम एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस. लेकिन जब तक मैंने ये सोचा कि चलो अब बस इतना ही करते हैं, पम्मी आंटी हैड बिकम वायरल, इट हैड बिकम अ बिग हिट. सो देन प्रॉब्ली आई वाज लाइक, अब बंद किया तो खराबी होगी, लेट्स डू इट. सो थोड़े दिन और किया तो मैंने को लगा चल 10-15 एपिसोड और करते हैं. मगर करते करते फिर मिस्टर ऋषि कपूर ने भी ट्वीट कर दिया. तब तक आधी बॉलीवुड जान चुकी थी, मीडिया अटेंशन आ चुका था. सो आई डोंट थिंक सो देयर वाज गोइंग बैक काइंड ऑफ स्टफ. बट विद गॉड ग्रेस आई हैव बीन स्टिल कैरिंग ऑन विद पम्मी आंटी. सो आई एम एंजॉयिंग द फेस. इट्स इंटरेस्टिंग. सो व्हेन यू स्टार्टेड, ऑब्वियसली आपने अभी शेयर किया कि आपने सोचा नहीं था कि ये इतने आगे बढ़ेगा, बट जब वायरल हो गया, जब ऋषि कपूर ने ट्वीट किया कि दिस इज़ सो फनी, उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया था आपको ट्विटर पे, एंड देन हाफ ऑफ द बॉलीवुड, एज यू सेड, स्टार्टेड appreciating you. How did you feel then? It's always overwhelming when your fraternity acknowledges your work. And that's what you look forward to, you know. हर एक का मन में यही होता है कि काश का बड़े लोग भी आपको सराहे. ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स तो आपको सराहते ही हैं, बट दैट वाज लाइक वाओ, बिकॉज द लेजेंड्स acknowledging your work and they are giving you blessings, that means a lot. And so far it's been going good. Yes. So Pammi Aunty is not just limited to our phone screens. आपको होस्ट करने के लिए भी बुलाया गया था. आप recently you've been to Jio Film Fare Awards. How was the experience there? Brilliant. It was in Punjab. So first time Filmfare Awards went to Punjab. The black lady entered the Punjabi market. So it was good fun. I was hosting with Manish Paul, Arjun Bajpa and Ami Virk. So great. Everybody loved Pammi Aunty there because Pammi Aunty is from North India and she's quite famous there. So great experience interacting with Gurdas Manji, with Diljit Dosanjh. So and they all love Pammi Aunty. See, the best thing is when I go to these awards, it's more like a reality check for me. मुझे पता ही नहीं होता कि बाहर हो क्या रहा है. So it's the moment आप जाते हैं, सबको मिलते हैं, and when they appreciate your work or they say कि our family is your huge fan or we are your huge fan, it's like oh my god. So उस टाइम में आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं, ऐसे like oh my god, thank you so much. So that's how it is. So that's why I love doing these award shows and hosting. You get to know how many people still love you. Also, I believe it's very rare that not a person but a character is called to host a big show. Like for example, in Zee Cine Awards, you were called as Pammi Aunty to attend the red carpet, to host the red carpet and the program. How was it there? Again, the same feeling. You know, when Hrithik Roshan comes to you and says, my family loves you. Neetu Singh coming and saying, my family loves you. Chunky Pandey coming. So again, I'll say it's overwhelming because बहुत कम लोगों को इतने कम टाइम में ऐसी सक्सेस मिलती है. And I'm very happy and obliged and thankful to God what is happening in my life right now. Also, you were disguised as Rekha, Pammi Aunty version of Rekha, with the golden sari. Well, it was just an idea कि जब पम्मी को वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती रेड कारपेट पे, तो वो कोशिश करती है कि मैं किसी तरह रेड कारपेट पे एंट्री ले लूँ. तो उसके पास एक आइडिया है कि ना मैं रेखा बन के चली, क्योंकि रेखा फिल्म फेयर की एक लकी मैस्कट है एंड बहुत लकी चाम है. तो कहती है अगर मैं रेखा बन जाऊंगी तो शायद मुझे लोग रेड कारपेट पे जाने देंगे. तो वो रेखा की तरह तैयार होती है. उसके बाद जो होता है वो तो फिर फिल्म जब टेलीकास्ट होगा तो पता चलेगा आपको. बट वो फेस पैक नहीं छोड़ती अपना रेखा बनने के बाद भी. नहीं, फेस पैक और रोलर्स वो कभी नहीं छोड़ती, वो उसका पक्का है. पम्मी क्वाइट हाईटेक है. ये काम हो गया पीछे, वो पीछे नहीं हटती. मेरे को भी कई बार समझ आता है, लोग मुझे पूछते हैं कि लाइक
अब आप वो अवार्ड होस्ट करने जा रहे हो तो उस टाइम पैक या रोलर हटा दोगे? मैं कहा, नहीं, पम्मी तो बिना रोलर के जाती ही नहीं है कहीं। वो उसका लुक ही बन गया है। सो आप जब डिस्गाइज होते हैं एज समवन एल्स, obviously you're an actor, you can do that, but एग्जैक्टली उस वक्त क्या इमोशंस चल रहे होते हैं, स्पेशली जब आपको इतने बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया जाता है, तो यू नो विद ऑल द पैक एंड ऑल द रोलर्स एंड द टाल, हाउ डू यू फील? Well, I have created that character and I am very proud of that character and there's nothing like कैसा feeling होता है when you actually act been acting, एक एक्टिंग का एक रूल है, जब आप किसी भी कैरेक्टर को निभाते हैं आप उसमें डूब जाइए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक आपका कैमरा ऑन है, उसके बाद यू स्विच आउट ऑफ दैट कैरेक्टर विद इन सेकेंड्स. सो द मोमेंट आई पुट दैट roller or sunglasses or something, I become Pammi for that minute, for 5 minutes or 2 minutes, whatever time I'm doing that. And that's the beauty, that moment वो ख़त्म होता है, I'm like चलो अब उतारो यार बहुत हो गया. So that's how it is important for any actor to get into that role and get out of that role. So why Pammi Aunty? Why the name Pammi and Aunty? I think so. पम्मी, जब मैंने ये शुरू किया था तो मैंने एक नाम डालना था और मेरे दिमाग में उस टाइम पता नहीं क्यों पम्मी मेरे मुंह से निकला, विच इज़ अ वेरी कॉमन पंजाबी नेम. और मेरे को बाद में एकदम जब मैंने नाम डाल दिया तो रियलाइज़ हुआ मेरी मम्मी की एक बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम भी पम्मी है. सो एंड मेरे एक फ्रेंड की एक आंटी थी, वो हमेशा ही कहता था, वो जब भी बॉम्बे आता था तो मैं उसको कहता था कि कहाँ पर है, तो मेरे को मिला नहीं इस बारी. अरे नहीं, वो पम्मी आंटी ने ना मेरे को बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया था. तो उसकी एक आंटी है पम्मी आंटी. तो मेरे लिए ना वो एक पम्मी वर्ड बड़ा ना इरिटेटिंग सा वर्ड हो गया था उस टाइम. सो मतलब ये होता है ना कि आपका फ्रेंड, आप जब भी वो बॉम्बे आता है वो आपको मिल नहीं पाता क्योंकि उसकी एक आंटी है पम्मी आंटी, और वो हमेशा उसको बिठा लेती है घर पे और उसको घर से बाहर नहीं. मैं कि तेरी पम्मी आंटी का भी स्यापा ही रहता है. सो आई थिंक सो फ्रॉम दैट वो मेरे दिमाग में एक बैठा हुआ था तो मैंने नाम पम्मी डाल दिया. तो आप जिससे सबसे ज़्यादा चिढ़ते थे, सपोजिटली आपने उनका ही एक कैरेक्टर बना दिया. So that's how if I go back I remember, तब भी मेरे को लगता है वो पम्मी मेरे दिमाग में इतना वो दिमाग में बैठा हुआ था, इतना पावरफुल कि ये तेरी पम्मी आंटी का भी स्यापा ही रहता है. So I hope वो आंटी देख ना रही हो. And Pammi Aunty is creating Siapa right now, I believe. वो हर जगह स्यापा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम से तो कितनी है. So on that note, I think Pammi Aunty को भी बुला ही लेते हैं. Okay, stay tuned all of you. We have Pammi Aunty coming up right here with me. Thank you. पम्मी आंटी हिंदी बात जी. हिंदी है बच्चों, Okay, वो इंग्लिश में. ठीक है. फाइनली हमारे पास पम्मी आंटी है. थोड़ी देर पहले ही हम पम्मी आंटी के बारे में बात कर रहे थे. एंड लुक एट सिने स्पीक्स का मैजिक. वी हैव पम्मी आंटी राइट हियर विद अस. नमस्ते जी. की हाल चाल तेरा? बहुत अच्छे हाल चाल है मेरे, और आपको देख के तो मुझे और अच्छा लग रहा है. मुझे ना बहुत सारे डाउट्स हैं आपसे, मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ. सबसे पहले तो ये सरला बहन जी है कौन, कहाँ है ये? सरला बेस्ट फ्रेंड है, पास में रहती है, साथ वाली गली में रहती. तूने पहले बताया होता तो मैं उसको ले आती. हाँ, क्या उसको ला सकते थे? पहले बताया होता ना, बिजी रहती है ना, बहुत सोशल वर्क करती है. आप अपनी सारी प्रॉब्लम सरला बहन जी से डिस्कस करती हैं? और कोई है ही कहाँ बेटा, अब इस उम्र में तुम्हारी तरह मेरे 50 फ्रेंड तो है नहीं. मेरे तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है बस, सरला. वो मेरे दिल की बात सुनती है, मैं उसके दिल की बात सुनती हूँ, हम सब आपस में दुख सुख बोल लेते हैं. और क्या. सबसे अच्छी एडवाइस क्या दी उन्होंने आपको? तब दी थी, मैंने मानी नहीं. उसने कहा था मेरी जो MB है उसके साथ मेरे बेटे की शादी ना करो, तब मैंने मानी नहीं थी. अब मैं पछता रही हूँ, मगर तब से संभाल रही हूँ. तो ये सरला आंटी कभी सामने भी आती हैं, कभी साथ में बैठ के आप लोग बातचीत करते हैं, फ़ोन पे ही सब? बहुत बैठती हूँ मेरे घर पे तो बहुत आती है. हम लोग तो किट्टी इकट्ठे जाते हैं, मंदिर इकट्ठे जाते हैं, हम तो बड़ा कुछ फन इकट्ठा करते हैं हम तो. हाँ बिल्कुल. मुझे ये जानना था पम्मी आंटी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती कहाँ से आपकी लाइफ में? आप कुछ पॉजिटिव वगैरह कुछ आपकी लाइफ में है? मैं पर्सनली बड़ी पॉजिटिव हूँ, तुझे पता है. लेकिन क्या करूँ, लाइफ का तो मतलब ही यही होता है. वो क्या था वो रजीश खन्ना वन्ना गाना, पता है, वो मेरे को हमेशा याद आ जाता है. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये सताए. तो इसलिए वो लेकर ना मैं चलती रहती हूँ. तो दुख तो सबकी जिंदगी में होती है. तू कौन सा सब हमेशा सुखी रहती है? तू बता, आप तो सीधी इनके साथ काम करके खुश है, आगे कल को जॉब ढूंढेगी ना, तो ऐसे ही होता है. ओके. बॉलीवुड में पम्मी आंटी को किस पे क्रश है? मेरे को तो मेरे जमाने के लोग अमिताभ बच्चन पे है क्रश.
ऋषि कपूर पे भी क्रश है। मुझे तो अमरीश पुरी भी अच्छा लगता था। हाँ, बहुत पसंद था, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था। ऋषि कपूर ने आपके बारे में कुछ पोस्ट भी किया ना, उन्होंने भी आपको एक्नॉलेज किया, सब कुछ किया। हाँ हाँ, पता ही नहीं, पम्मी आंटी को आइडिया नहीं है। मुझे पता ही नहीं है। चलो अच्छा है, सिने स्पीक्स पम्मी आंटी को बता रहा है कि ऋषि कपूर ने पम्मी आंटी को एक्नॉलेज किया था। क्या बात कर रही है, सच्ची? हाय मैं मर गई, मेरा तो बड़ा दिल करता है उसको मिलने को, मिलने नहीं अभी, बल्कि मैं ना सीसीडी अवार्ड पे नीतू को मिली भी थी, मैं तो कहा था ऋषि जी को लेकर आओ, लेकर ही नहीं आई। अच्छा, जी सिने अवार्ड्स से याद आया, आप जी सिने अवार्ड्स गई थी, पम्मी आंटी गई थी। हाय इतना मजा आया, मैं रेड कारपेट पे चली, ओहो इतने एक्टर एक्ट्रेसेस, हाय मगर मैं सबसे हॉट लग रही थी वहाँ पे। है ना? मुझे भी बड़ा स्पेशली अपना ना मुंडका से मैंने एक नया लहंगा प्लाजो टाइप सिलवाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वहाँ किसको देख के पम्मी आंटी का दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया था? ऋतिक रोशन आया था, बड़ा ही सोना मुंडा है, हाय आ कहने जफ्फी पाई, कहना आंटी मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा फैन हाँ। मैं कह सच्ची, मैं तो बड़ा ही शर्मा, मैं तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं कहा मैनू अगली पिक्चर 'ਚ अपनी माँ बना ਲੈ, कहते पापा ਨੂੰ बोलांगा। ये फेस पैक का क्या क्या उसके पीछे का क्या राज है, मुझे भी बताइए, मैं भी लगा लूँ थोड़ा सा। ताकि मेरी तो अच्छा हमेशा ग्लो करे। मैं चाहती हूँ कि ना जब मैं बाग बगीचे में हूँ ना, तो एक बच्चा घूमते घूमते आए तो और मेरे को कोई ना कहे आपका बेटा है, मैं कहूँ नहीं मेरा पोतरा है मतलब मेरी उम्र से तो अच्छा का पता ही ना चले, मैंने ऐसे ऐड भी करना चाहती हूँ। हाँ, तो आप लेकिन अवार्ड्स में भी ऐसे फेस पैक के साथ चली गई? नहीं अवार्ड में क्या हुआ था, वो अवार्ड जल्दी शुरू हो गया था, मैं लेट हो गई थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला उतारने का, मेरे को था मैं मिस ना कर जाऊँ अवार्ड को। हाँ, और ये गॉगल्स का क्या राज है, पिंक गॉगल्स का? स्टाइल स्टेटमेंट। तो फैशन टीवी नहीं देखती मैं, तो बड़ा पेरिस के अंदर बहुत फेमस हूँ मैं तो सच्ची। अच्छा, पम्मी आंटी को रिसेंट सबसे ज्यादा किससे प्रॉब्लम है? मेरे को तो एक ही जिन्हें से प्रॉब्लम है बस, मेरी बहू, और तो बाकी सब ठीक ठाक ही है आजकल। बाकी मैं आजकल थोड़ी सी बिजी भी रहती हूँ, टिंकी की शादी हो रही है इसलिए थोड़ा सा बिजी उसमें भी हूँ। सपोज करते हैं कि मैं अभी सरला बहन जी हूँ, सपोज करते हैं। मैं नहीं कर सकती ऐसे सब, तू ऐसे कैसे सरला बन सकती है? अच्छा, तो फिर मैं परिधि बन जाती हूँ जो मैं हूँ, पर मैं आपके सारे दुख दर्द सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अब रिसेंटली आपको किस चीज़ से शिकायत है, मैं सब सुनूंगी और मैं एडवाइस दूंगी। मेरे को अभी रिसेंटली शिकायत पता है सब चीज़ से क्या है, जो सारे आजकल सोशल मीडिया के अंदर ओहो ऐसी अफवाहें फड़ाते रहते हैं, कभी ये हो गया तो हो गया। अरे परसों क्या शोर मच गया था कि मोदी जी ने 2000 का नोट भी बैन कर दिया, ओहो मेरी एमपीए ने इतना जीना आराम कर देता। मैं इतना दुखी हो गई, ऊपर से उसकी माँ का फ़ोन अमेरिका से आ गया, भैन जी मेरे पैसे बदलवा दो। मैं कि मैं पागल लग गया, मैं यही काम आ गया तो पैसे बदलवाई जाओ। ये सोशल मीडिया कुछ आज लिखता है रोज़ चेंज करते, मैं तो सच्ची फेसबुक सब पे जाना बंद कर दिया। बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं अफवाह उड़ जाती है, बंदा जाए मरे कहाँ इंडिया का। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं भी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया छोड़ने की कगार पे हूँ। एक एक्टर मेरे ध्यान में आ रहा है, सुमेर, काफ़ी आपसे मिलता जुलता, कभी मिली हैं आप उनसे? अरे उसको मैं जानती हूँ, बड़ा प्यारा बच्चा है। और क्या क्या जानती है उसके बारे में? पम्मी आंटी उसके बारे में क्या क्या रेवलेशंस बता सकती है? भाई पत्रियाँ बड़ी अच्छी पढ़ता है, मैं तो अपनी पत्रियाँ उसके पास लेके जाती हूँ। मैं तो हमेशा उसको कहती हूँ मुझे बता दे कि मेरी बहू कब मेरा पीछा छोड़ेगी या जो भी है, मेरे ग्रह कब नहीं। वो बता रहा, कहता है आंटी अभी शनि की दशा चल रही है, मैं भी क्या करूँ, शुक्र भी ठीक नहीं, शनि भी ठीक नहीं लगता, सारे ग्रह मेरे ही खराब है। ऊपर से बस प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँ। ऊपर से मेरा बच्चा देख ले, मेरा बेटा भी बच्चे पैदा नहीं करने वाला, पता नहीं कब करना नहीं करना, मेरे घुटनों में अब जान नहीं रहेगी, कब तक करूँगी, तू समझा ले, तेरा फ्रेंड है तो सुमीर टिम्मी। Sorry, I just blacked out. मैं समझाती हूँ उनको। On that note, पम्मी आंटी, नहीं भाई तो बता, मैं तेरी करा देती हूँ, मैं तो आजकल बड़े लोगों की कराती रहती हूँ। आप कराएंगे मेरी शादी? कैसा लड़का चाहिए तेरे को? मुझे ऋतिक रोशन जैसा लड़का चाहिए। एक्टर के साथ नहीं करनी बेटा, जैसा ऋतिक रोशन जैसा। वैसा दिखने वाला। हाँ फिर उसके लिए तो बेटा ग्रीस व्रीस कहीं जाना पड़ेगा, ऐसी डाइयाँ तो यहाँ इंडिया में बनती भी नहीं है, वो तो एक ही बना था बस। कोशिश करते हैं, चल ग्रीस की टिकट दे दे, फिर मैं हो आऊँगी, मैं 10 दिन छुट्टी भी लगाऊंगी, तेरे लिए का लड़का तो ढूंढ नहीं लूँगी। ठीक है, ऑन दैट नोट आई थिंक मुझे मेरा होने वाला पति मिलने वाला है पम्मी आंटी के जरिए। कुछ भी लेकिन अगर गलत हुआ तो पम्मी आंटी आप जिम्मेदार हैं। घबरा मत, पूरा पत्री मिलवा के करेंगे। तो आपने अपने बहू की पत्री क्यों नहीं मिलवाई फिर? बस यही है, जब कर्म खोटे होते हैं ना उस टाइम सब इधर उधर हो जाते हैं, लिखा था सो हो गया, कौन रोक सकता है। ठीक है, ऑन दैट नोट आई थिंक
पम्मी आंटी आपको जाना है ना सरला बहन जी के? हाँ मेरे को जाना, अब मेरे मंदिर का टाइम हो गया। अच्छा, मुझे लगा आप मंदिर भी ऐसे ही जाएंगे। हाँ ले, और कैसे जाऊंगी? नहीं, सही बात है, वैसे ही जाना चाहिए, त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। तो लुक ही ये है। डेफिनेटली। ओके, ऑन दैट नोट आई थिंक आई विल साइन ऑफ। थैंक यू पम्मी आंटी। जीती रहे। Thank you. Thank you, Sumer also. I hope he's somewhere here. This is Paridhi signing off. ऐसे करके मर गया सुमीर, जिंदा है समवेयर हियर बिटवीन अस। यही है, जिंदा है, कमरे में बैठा है। बाय, जीते रहो, हैप्पी बैसाखी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी नवरात्रि, सब कुछ हैप्पी।